Assalamu alaikum 10th class. This is grammar portion related to unit number 1. In grammar portion, unit number 1, there is concrete noun and abstract noun. As we all know that the concrete noun and material noun is kind of noun. Okay, what is noun? Noun is a naming word. As name of a country, name of a object, name of a person is called a noun. Okay, the kinds of noun, concrete noun and abstract noun is a kind of noun. Is it clear? The question arises, what is concrete noun? Concrete noun or material noun. In concrete noun, in other words, we can say that material noun. Okay, concrete noun or the material nouns are anything that can see, touch, smell, taste and hear. वो चीजें concrete noun वो होता है, material noun वो होता है जो किसी चीज को हम छू सकें, देख सकें, स्मेल कर सकें, टेस्ट कर सकें या हियर कर सकें. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 5 सेंसेस हैं जो हम concrete nouns are word that refer to object that we can experience with our 5 senses. हम 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकें, उसको हम concrete noun कहेंगे. by seeing, tasting, hearing, smelling or touching. For example, a mountain can be seen. Incense stick can be smelled. तो ये क्या है कि ये एग्जाम्पल्स हैं मटीरियल नाउन की, कि माउंटेन को देखा जा सकता है, इंसेंस स्टिक को हम सूंघ सकते हैं. जिसमें आपकी 5 सेंसेस यूज हों, हम उसको कहेंगे मटीरियल नाउन. Now I am going to tell about the abstract noun. What is abstract noun? Abstract noun is also kind of noun. Abstract nouns are referred to. क्वालिटीज को कहा जाता है, एक्शन को कहा जाता है, स्टेट को कहा जाता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि आप उस चीज को फील करें. यू कैन नॉट सी, यू जस्ट फील इट. फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस. काइंडनेस क्या है? हमदर्दी या मेहरबानी है ना. काइंडनेस इज अ क्वालिटी. लाफ्टर इज एन एक्शन. ब्यूटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. तो ये क्या है? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, हम हमदर्दी को देख नहीं सकते हैं, हम लाफ्टर को, हम उस एक्शन को हम फील कर सकते हैं, ब्यूटी को भी हम फील कर सकते हैं. तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. मैनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एंडिंग suffixes. फॉर एग्जाम्पल ड्राइनेस, motherhood. Some abstract nouns end in y, ty या ity. Okay, toy, beauty, responsibility. Some abstract nouns end in ion, tion या aton. Collection, distraction, admiration. Now these all are example of abstract noun. We cannot see the dryness, motherhood. We can feel. Okay, beauty we can feel, responsibility we can feel, destruction तबाही. तो ये क्या है? ये सारी एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हम जिस चीज को हम फील कर सके. फॉर एग्जाम्पल हम जस्टिस को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कर सकते हैं. इक्वालिटी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में करेंगे. दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डियर स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड difference between abstract noun and concrete noun. As I have told you that in concrete noun we use 5 senses, but in abstract noun we just think about or feel about. Okay,
abstract noun are opposite of concrete noun. They can only be thought of or felt. They cannot be seen or touched. For example, an idea can be thought. Happiness is a feeling. ये जो चीज़ फीलिंग की है, सोची जाए, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है. The next exercise in unit number 1, noun phrase. What is noun? As I have told you, noun is a naming word. So what is the noun phrase? A noun phrase is a group of words that does the work of a noun. जो noun phrase वो होता है जो एक noun काम करता है, सेम इसी तरीके से एक group of word भी सेम वही काम करता है. ठीक है. बट फ्रेज क्या है? फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है. एक ग्रुप ऑफ वर्ड को हम फ्रेज कहा जाता है. ठीक है. तो हम नाउन के साथ हम एडिशन कर देंगे सम वर्ड्स की, वो भी नाउन होंगे लेकिन वो मल्टीपल नाउन हो जाएंगे, नाउन फ्रेज हो जाएंगे. तो नाउन फ्रेज इज कॉमनली फंक्शन बोथ एज अ सब्जेक्ट as well as object of the word. For example, let's take a look at the following example. The man was walking slowly. Man is a noun. And the second example is the old man with a stick was walking slowly. Noun phrase बन गया. देखें आप एक फुल इसका एक पार्ट को ले लें, ग्रुप ऑफ वर्ड को ले लें, तो वो क्या है? ओल्ड मैन. एक ओल्ड मैन स्टिक के साथ, स्टिक भी आपका नाउन है और ओल्ड मैन भी नाउन है. ठीक है. तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया. ये हो गया नाउन फ्रेज हो गया. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल इज किरण क्लोज्ड द बैग. बैग इज अ नाउन एंड इफ वी चेंज दिस वर्ड इन टू अ ग्रुप नाउन फ्रेज, तो हम कैसे करेंगे? किरण क्लोज द बिग ब्राउन बैग. बिग ब्राउन बैग. देखिए ये सारे क्या हैं? नाउन हैं. तो ब्राउन बैग एक बड़ा बैग, तो सिर्फ एक नाउन नहीं आया, ये ग्रुप ऑफ नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गए. तो ये क्या हो गया कि नाउन फ्रेज बन गया है. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नाउन फ्रेज. The girl in yellow dress come to meet me. Underline word. The girl in yellow dress is noun phrase. Just I'm telling you here just noun phrase. अब ऊपर सेंटेंसेस में मैंने आपको नाउन बता दिया कि नाउन को कैसे हम अलग से करेंगे और फिर नाउन फ्रेज को किस तरह करेंगे. अब इन एग्जांपल्स में आपको जस्ट बता रही हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो नाउन फ्रेज वो एज अ नाउन ही काम करता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाता है वो. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारी, द हंग्री बॉय वॉज लुकिंग फॉर सम फूड. हंग्री बॉय, भूखा लड़का. ठीक है. तो ये क्या हुआ? ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया. लुकिंग फॉर का मतलब पता है? लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, सर्च करना, तलाश करना. तो खैर इसको तो हम नहीं कर रही, ये तो जस्ट आपकी एक आई एम टेलिंग यू जस्ट मीनिंग ऑफ लुकिंग फॉर. लेकिन इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है? हंग्री बॉय है. ओके. नेक्स्ट, हिज सडन डिपार्चर. उसकी अचानक रवानगी जो है वो सरप्राइज कर गई मुझे. तो ये क्या है? अंडरलाइन वर्ड. हिज सडन डिपार्चर इज अ नाउन फ्रेज. द नेक्स्ट वन इज द बॉय फ्रॉम द लास्ट रो raised his hand. तो underline word is, underline phrase is called noun phrase. Okay, I think so you understand better.